Hi everyone. So today we are going to learn about the Das Mahavidyas. So I welcome each one of you to this free webinar of the Das Mahavidya. And today we are going to talk about the Das Mahavidya. So we'll just pray to the Das Mahavidya. Om Gam Ganpate Namah, Om Gam Ganpate Namah, Om Gam Ganpate Namah. And हम सब की तरफ से माँ प्रणाम स्वीकार करिए और हम सबको गाइडेंस और लाइट प्रदान करिए. जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी. So, as we begin with this session, this was a very, very short invocation, which is required whenever we begin with some, beautiful spiritual class. So, I welcome each one of you to this beautiful webinar of the Das Mahavidya, and you can keep your notebook, you can keep your pen if you want to write, if you want to note down anything, because it's going to be knowledgeable. You are going to unleash a lot of truths and a lot of things. So let's learn more about what is Das Mahavidya. And before that, I will just talk about little things. So I will talk about in Hindi, and I will also talk in English. तो बीच में ये it's a like of English, जैसे हिंदी इंग्लिश का combined होता है ये. मेरी क्लासेस में भी कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश होता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग का लेवल, बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो इंटेंशन है, वो ये है कि सबको समझ में आए. तो सबको अच्छे से समझ में आए कि ये है क्या और हम ये क्यों लर्न करना चाहते हैं और हमको क्यों कनेक्ट होना चाहिए. So that is why this is all about that. So again, I welcome each one of you today to today's webinar, and I feel extremely blessed while talking about the Das Mahavidya. मुझे कभी भी कोई भी मौका मिलता है, even in my home, I'm talking about माँ काली. I talk to other people also जिनसे मैं connect होती हूँ. I love talking about the Das Mahavidya, and I also love talking about the माँ काली and her form. So why? Because I'm so beautifully connected to her in so many ways. And before she came in my life, मुझे बहुत सारी चीजें आने लग गई थी मेरी लाइफ में, एंड देन शी एंटर्ड माय लाइफ. ऐसे अगर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बिना कुछ किए अगर एंट्री हो रही है, तो उसका भी एक रीजन होता है. एंड मेरे लाइफ में बहुत लेटर शी हैज कम इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ. तो हर चीज का एक रीजन होता है. And I really feel extremely blessed while talking about the Das Mahavidyas. And basically, this is a journey into divine transformation. ये एक डाइव है, जैसे हम स्विमिंग पूल के अंदर हम डाइव करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ये एक स्विमिंग की तरह है. एक मतलब, what do I say, like it's like a, this is basically like a हम एक डुबकी ले रहे हैं, हम एक स्पिरिचुअल बाथ ले रहे हैं. व्हेन वी आर लिसनिंग अबाउट द 10 महाविद्यास, व्हेन वी आर talking about the 10 महाविद्यास, it is like we are just taking a dive into the spiritual water. It's just like a mahakumbh, it is just like a holy a dip in the holy river. So this is a journey into divine transformation, and I welcome you to this journey that traverses the realms of the ancient and the mystical. इसमें सब चीज का कॉम्बिनेशन है, बहुत पुरानी कहानियां हैं, माइथोलॉजी है, बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो हम डिकोड करते हैं. मतलब जैसे जो मिस्ट्रीज है जिनमें ताला लगा हुआ है, जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्चर्स है, उन सबको ताला लगा के रखा है. बहुत सारी चीजें हैं जो हम उन तालों को खोलेंगे, हम उनको डिकोड करेंगे, उन रहस्य के बारे में जानेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे. So, I can spend my entire life on just contemplating about a single event in this huge subject, and वो भी complete नहीं होगा. तो such is the ज्ञान, such is the information about the 10 महाविद्यास. and ये बहुत abstract भी है. जैसे कोई एक इंसान बोल सकता है कि मैं 10 महाविद्या से इस तरह से कनेक्ट होती हूँ, बट इट विल नॉट बी द सेम एज द अदर पर्सन इज कनेक्टिंग. व्हाई? द रीजन इज कि हर किसी का एक लाइफ पाथ अलग है, हर किसी का एक लाइफ जर्नी अलग है, हमारी हमारी पूरा कर्मा रिकॉर्ड अलग है, सब चीज अलग है. तो जब हम 10 महाविद्या के बारे में सीख लेते हैं, जब हम उस नॉलेज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे खुद अपने आप को हमारी लाइफ में अनलीश करती है, हमारी लाइफ में आती है और हमारी लाइफ को फिर उसके बाद वो कंडक्ट करती हैं वंस शी एंटर्स इन आवर लाइफ.
So Ma Adi Shakti is just infinite and she can work out in whatever form the seekers evoke her. मतलब आप उनको किस फॉर्म में देखते हो ना, वो वैसा ही फॉर्म आपकी लाइफ में आएगा और वैसा ही किस चीज की आपकी लाइफ में जरूरत है, दैट विल कम इन योर लाइफ. क्या चीज की मिसिंग एलिमेंट है आपकी लाइफ में, वो चीज की पूर्ति होती है. सो आई वुड ऑल्सो से दैट दिस इज जस्ट लाइक अ कॉलिंग. ये एक कॉलिंग है. when you do the 10 महाविद्यास, it first gives you भोग and then it gives you मोक्ष. आपको हर तरह का भोग मिलता है, यानी कि हर तरह का आपको लाइफ में लग्जरी, लेजर, प्लेजर, ऐश्वर्य, बहुत कुछ मिलता है आपकी लाइफ में कि आप उस चीज से इतने तृप्त होके इतने भर जाते हो. देन यू स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स द मोक्ष, दैट इज द लिबरेशन, दैट इज लीड्स अस टू सेल्फ रियलाइजेशन. हम अपने आप को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं आफ्टर डूइंग द 10 महाविद्या. और बहुत सारी चीजें हैं, हमको हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना लाइफ के बारे में, कि ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या व्हाई दिस हैपेंड विद मी, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, वो तो कुछ भी नहीं करती है, मैं ये कुछ करती हूँ फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ. सो ऑल दीज क्वेश्चंस देन स्टॉप कमिंग टू अस, बिकॉज ये आने के बाद वो अपने आप हमारे लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिलने लग जाते हैं. we start understanding about the deeper secrets of life, deeper truths of life. So this guidance come to those who are seeking empowerment, जिनको सशक्त होने की जरूरत है, उनके पास ये गाइडेंस आती है. And this is very, very close to my heart, and I love to share my knowledge with each one of you. Whether you are coming for the workshop or not, I don't care, but I just love to tell this to each and everyone and each and every person कि हर किसी को ये करना चाहिए. ये जब से मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें भी आई हैं, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ हुआ है. सो लाइफ हैज टेकन लाइक इट्स बिकम लाइक अ रोलर कोस्टर, लाइक कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, एंड आई एम ऑलवेज इन द फ्लो ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. आपका थॉट फॉर्म चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, जिस तरह से आप सोचते हो ना, आपका नजरिया, बेसिकली आपकी जो आंखें हैं वो सेम है, बट आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है. एंड दैट इज वाई she actually chooses her mediums जिनके थ्रू उनका ज्ञान स्प्रेड होना है. So it will not come to all. See, this is a calling which will come just to a few ones. हर किसी को ये कॉलिंग नहीं होती है, हर किसी के अंदर कोई इच्छा भी जागृत नहीं होती है. कई लोग आते हैं, फ्री वेबिनार अटेंड करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट देयर डिवाइन टाइमिंग. बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, ये टाइमिंग मत रखो, वो टाइमिंग मत रखो, सुबह रखो, दोपहर रखो, शाम रखो. बट जब हम अंदर से पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं ना, then we just give up all these inhibitions, we give up all these questions that arise in our mind, and we just go in the flow. We just want to dive deep into it. Whenever I want to learn something, I'll just share what I am, because this class is what I am conducting. So I am a medium, so I will say that मेरा क्या होता है हमेशा, when I want to learn something very truly, deeply, and since a long time, I would just rather I would just not see anything, whether it's the money plan, or whether it's the timing. I would just go for it. मैं अपना टाइमिंग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज सीखना है. तो हमेशा प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा. तो कुआं विल नॉट कम टू द प्यासा. आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा. यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा. सो दैट इज आप कितने अंदर से तैयार हो. So the first question that arises in the mind of any person who has come here and who is going to listen to it later, can everyone do this 10 महाविद्या? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है. मेरे दिमाग में भी आया था ये क्वेश्चन, because I'm also a human, as equal human like you. I'm equally just like you. I'm not different from you. So the answer is that everyone should do the 10 महाविद्या, and everyone can do it. बट इसका क्या है, टाइम आता है when they want to give their knowledge to you. मतलब हम लोगों को क्या लग रहा होता है कि सारा लाइफ में सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमारे हिसाब से लाइफ चल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. इफ यू लुक एट द बिगर पर्सपेक्टिव, इट इज she who is doing everything. So when she wants to come to you, she will choose her devotees, her bhakts, her madhyams, her mediums, her channels. So the Adi Parashakti chooses who they want to be, and then
once this alignment happens, आपको पता चलेगा कि आपको कब करना है. You will understand. आपको इतना समझ में आ जाएगा, आपको इतना क्लैरिटी मिल जाएगा ना, आपका इंटरेस्ट आएगा, आपकी क्यूरियोसिटी आएगी. You will just feel like searching more and more about it. कि ये है क्या, 10 महाविद्या क्या है. एक सर्च, आपके अंदर एक सर्च होती है ना, एक हंगर, एक डिजायर, वो उत्पन्न हो जाती है. जब ये आपकी लाइफ में आती है ना, तो आने से पहले आपके अंदर एक वो डिजायर, इच्छा होने लग जाती है कि मुझे ये करना है यार, मुझे ये करना है. कई लोग मेरे पास हैं जो बोलते हैं मैं पिछले साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, पर कोई ना कोई ब्लॉकेज आता है. whenever you are conducting a class, I am not able to do it. And now this is the time I made my mind very, very clear. I became very strong about it कि कुछ भी हो मुझे तो करना ही करना है. And that is the time when the doors will open. And then you just have to understand the signs. तो आपको सिर्फ वो साइंस समझने की जरूरत है कि क्या आप ये अंदर से करना चाहते हो, और ये अपने आप आपको चूज करती है. Something will keep on popping up on your, कभी आपके मोबाइल पे मैसेजेस आना, like, you will keep seeing माँ काली's pictures, reels, YouTube videos और whatever, books. आपको मतलब आप कहीं एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको कोई बुक दिख जाएगी of 10 महाविद्या, or you will see of माँ काली, anything. So these are signs, and gradually once you do the 10 महाविद्या, you start understanding the signs of the universe, synchronicities. बार बार आपको डबल वन दिखेगा, 11 वाला जो है numbers. So these, something, will start connecting to you. So before it came to my life, मुझे बहुत मतलब मेरे लाइफ में तो काफी लेट ही आई है 10 महाविद्या, बट उससे पहले वो डिफरेंट फॉर्म में मेरी लाइफ में ऑलरेडी थी. So how she came in my life is that, before she came to me, like, मतलब before I learned from my Guruma, I started visiting lots of Kali temples. मेरा मन करता था कि मैं काली जी के टेम्पल जाऊं. मैं कभी कोलकाता जाती थी तो I used to visit the Kali Ghat, I used to visit the Dakshineshwari Kali. I used to, read something about Ma Kali. I had a picture जिससे मैंने कनेक्शन डेवलप करने लग गई थी. मुझे रात को सोते समय मुझे रोज माँ काली दिखती थी. मतलब मैं आंख बंद करती थी एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट सीइंग हर एवरीवेयर. मतलब मुझे एवरीवेयर आई यूज्ड टू जस्ट सी हर. मतलब इवन इन ड्रीम्स द होल नाइट आई यूज्ड टू जस्ट सी हर. मुझे समझ ही नहीं आता था कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी. मुझे, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई नेवर यूज्ड टू शेयर विद एनीबॉडी, क्योंकि मैं ये सब चीजें मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती थी. तो मैंने थोड़ा रीड करना शुरू किया माँ काली के बारे में, एंड सडनली व्हेन आई सॉ दैट दिस इज हैपनिंग, आई जस्ट वेंट फॉर इट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट्स. मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, बस मुझे ये दिखा एंड आई जस्ट डिड इट. मतलब विदाउट नोइंग मच अबाउट इट. मुझे तो इतना कोई ये फ्री वेबिनार वगैरह मैंने कुछ नहीं अटेंड किया था. आजकल तो इतना कुछ हम लोगों को मिल जाता है, मुझे इतना पता नहीं था. बस इट केम टू मी एंड आई डिड इट. And then I started doing my sadhana and everything. I started, connecting more and more. मेरे अंदर वो एक थर्स्ट जो होता है ना, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं उसके बाद हमको प्यास लगने ज्यादा शुरू हो जाती है, तो वैसा ही हुआ. When I learned about it, I started, more researching about it. ऐसे करते करते I kept on learning about her, and it has not stopped till date. I just, keep reading, I keep texting. जब भी मुझे time मिलता है, texting नहीं, मतलब I keep reading and, reading and searching more about the 10 Mahavidyas, Ma Kali, especially Ma Kali. She's my favorite. So I keep reading and I keep on, when you do your own sadhana, when you do your own meditation, and via guidance, it keeps on pouring on you. And I will assure you, once she comes in your life, they come in your life. Actually, it's the 10 Mahavidyas, all the 10 cosmic goddesses, the 10 cosmic forces. When they enter your life, right things start coming at the right time. जो जब होना है वो तभी होगा. And you stop doubting the universe, क्योंकि आपको समझ में आने लग जाता है. You start, decoding these messages. But it is very important to have a mentor and go through a mentor. Never do all these things directly from, आपने जैसे कोई ज्ञान नहीं लिया है, कोई मेंटर से, कोई गुरु से आपने दीक्षा नहीं ली है, उसके बिना आप ज्यादा रिसर्च, ज्यादा किताबें या ज्यादा कुछ भी बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो देयर माइट बी अ कंफ्यूजन. एंड कोई भी हमको, जैसे हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि ये मंत्रा करो इससे ये होता है, ये मंत्रा करो इससे होता है, दैट इज नॉट गुड. बिकॉज एवरी मंत्रा हैज अ डिफरेंट एनर्जी, और वो आपकी एनर्जी बॉडी में कैसे एक्ट करेगा, you don't know.
So that is why we always do all these higher practices, higher learnings through a guru and through a mentor who shows us light and direction on the important aspects and projects things to you in an easy way. आपको हर चीज लेड ऑन द प्लेटर मिल जाता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सब चीज आपके सामने एकदम रेडी करके गुरु आपको दिखाता है, बताता है, समझाता है. And if you have been connected in the past lifetimes, it comes very easily to you. And we have to understand that we do not choose the 10 Mahavidyas. हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं ये. It's not you. It is she will choose her bhakts, her devotees, and her channels and mediums. So this is the knowledge of the 10 Shaktis, the 10 goddesses of the cosmic forces. एंड दिस वॉज नॉट वेरी पॉपुलर एंड कॉमन. पुराने जमाने में, जब बहुत बहुत साल पहले, जब ये सिर्फ किताबों के अंदर ज्ञान हुआ करता था, ये कॉमन नहीं था. आज तो फिर भी कॉमन है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. बट पहले ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान हुआ करता था, रहस्य हुआ करता था. इट वॉज जस्ट लाइक अ मिस्ट्री. वाई इट वॉज नॉट told to everybody? Because they are very very powerful. क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और पोटेंट एनर्जीज है. एंड जब भी कोई भी चीज पावरफुल होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है. हर पावरफुल चीज को हर इंसान हैंडल करने की काबिलियत नहीं रखता है. जैसे अगर इफ यू ट्राई टू पुट बल्ब ऑफ 100 watt इन अ होल्डर ऑफ 20 watt, क्या होगा? इट विल एक्सप्लोड. वो नहीं जल पाएगा. तो इसीलिए व्हेन यू आर रेडी, जब आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली रेडी होते हो, देन दिस नॉलेज कम्स टू यू ऑटोमेटिकली. और इसीलिए पुराने जमाने में ये हिडन था, ये छुपाया हुआ था, ताकि इसको कोई मिसयूज नहीं कर सके. क्योंकि क्या होता है, माँ काली एंड द 10 महाविद्यास आर सो पावरफुल दैट वंस दे एंटर योर लाइफ, बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू होने लग जाती है. आपके शब्दों में पावर आने लग जाता है. आप जो सोचते हो वो चीजें ट्रू होने लग जाती है. तो इसलिए इस ज्ञान को हिडन रखा हुआ था कि हर किसी को ये मिल जाएगा तो हर आदमी इसको यूटिलाइज करने लग जाएगा. देन व्हाट इज द नीड फॉर द हीलर्स एंड द पावरफुल जो पंडित होते हैं, या उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? सो दैट इज व्हाई इट वाज जस्ट हिडन एट दैट टाइम. एंड नाउ इज द टाइम व्हेन इट्स ऑल कमिंग आउट एंड व्हेन पीपल should access this knowledge and this energy and power, taki life starts changing. Because this is an Aquarius age, and this is the age of change. Everything is uplifting. The frequency of the earth is also raising, and this is the time of human consciousness. This is a time of change. ये जो है समय कलयुग का, अभी जो एक्वेरियन एज चल रही है, इसमें सब चीजें हर चीज हील हो रही है, हर चीज रेज हो रही है, अपनी फ्रीक्वेंसी जो है अर्थ की रेज हो रही है. That is why more and more people are doing spirituality. You will see young people have started doing spiritual things, spiritual practices, connecting to Krishna, connecting to Kali, connecting to 10 Mahavidya. But this is a very very powerful sadhana. 10 Mahavidya का जो साधना है वो इतना पावरफुल है कि आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हो ना, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द 10 महाविद्या, यू स्टार्ट इवॉल्विंग. आपका जो साइकिल होता है ना, जो ये जो भी आपका जो पुराना कर्म है, जो प्रारब्ध कर्मा है, जो ऐसे कर्म है जो नेगेटिव कर्मास है, वो कट होने लग जाते हैं. एंड कॉन्शियसनेस आपकी जो है वो रेज होने लग जाती है. जितनी ये कॉन्शियसनेस स्प्रेड होगी, more and more people, they get connected to you also, and then they get connected to 10 Mahavidya. And once you do this, more and more people get attracted to you, the positive people. And you start using this energy in doing positive things, in manifesting your desires. So in this age of Kali Yuga, we should all have one spiritual connection. कुछ भी होना चाहिए, चाहे हनुमान जी के साथ हो, काली जी के साथ हो, दुर्गा जी के साथ हो, anything, as we all need protection and guidance. This is the need of the hour basically. So the next, ये एक इस hour की requirement है, इस कलयुग की requirement है अभी. That is why we should all do this. Now the next topic that I want to talk about is the origin of the 10 Mahavidya. मतलब how they came into being, कैसे हुआ ये. Now we all know the story of Sati. कि it's a very popular story. If you don't know, you can listen. That
सती जो है, शी वाज शिव जी की, जैसे बोलते हैं ना, शिव जी इज अर्धनारीश्वर, सो द हाफ इज सती एंड द हाफ वाज शिव जी, मतलब दे वर हस्बैंड वाइफ. सो सती के जो पीहर है, लाइक मदर, उनके फादर ने एक यज्ञ रखा, दक्ष प्रजापति ने. सो जब वो यज्ञ रखा तो ही कॉल्ड एवरीबडी, बट ही डिड नॉट इनवाइट शिव जी एंड पार्वती जी. पार्वती बोलो या सती बोलो, इट्स द सेम थिंग, इट्स द आदि पराशक्ति basically we are talking about. So he did not invite them because he was not very happy with Lord Shiva. So then when he did not invite them, तो सती ने बोला शिव जी को कि मैं तो उनकी डॉटर हूँ, मैं तो बिना इनविटेशन के भी जा सकती हूँ. एंड शिव जी सेड कि बिना इनवाइट के जाना नहीं चाहिए, बिकॉज ही न्यू द रेपोकशंस कि क्या होने वाला है, ही न्यू इट. सो ही सेड कि नहीं जाना चाहिए, तो आई विल नॉट अलाउ यू टू गो. So at that moment, she was filled with so much of that, कि मुझे जाना है. And she, Shivji tried to stop her, and then she presented herself in all the directions in different energy forms. And these 10 energy forms, every direction, यानी कि हमारी 10 दिशाएं होती है. जहां भी शिवजी जा रहे थे वहां पे एक form of Kali, form of Adi Parashakti was standing there to, stop him. So then he understood कि Shakti will go. So he just went away and he allowed her to go कि ठीक है, you do what you want to. As like all wives, कि हम लोग जब कोई चीज ठान लेते हैं तो हम करके ही छोड़ते हैं. So this was the form very powerful of, and then transformation starts happening. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये होने लग जाता है जब ये हमारी लाइफ में एंटर करती हैं. Now they are very, very mysterious. All, when you look at the pictures of each Mahavidya, they are all very different. They look very different to each other. And this is all about the mystery of why they look like this. कोई किसी का सर कटा हुआ है, like माँ छिन्नमस्ता, उनका सर कटा हुआ है, and she is drinking her own blood in one of the hands. She has her head, and जो दो बाकी की रक्त की धाराएं हैं वो उनकी जो पार्टनर्स हैं उनके मुंह में जा रही हैं. So all these pictures, when you see na, the first reaction of any person is that you get scared and you get this thing, but over here everything has a symbolic meaning. It is not to scare the bhakt, it is basically to scare your enemies. So आपकी लाइफ में क्या होता है, the moment they get connected to you or you get connected to them, all the people who are not good for you, they also start exiting your life gradually. And that is why what we are doing in this workshop is we decode each and every picture, कि हर पिक्चर का एक मतलब है, हर पिक्चर का साइन का क्या मीनिंग है, उसमें ये क्यों बना हुआ है, ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है. So we decode in this workshop by learning and understanding about each form and each picture of the Mahavidya. And it has a very, very big symbolic significance. सबसे पहले हम बेसिक एस्पेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि हम उनकी पिक्चर से कनेक्ट होके उनके बारे में, उनका सिंबॉलिक जो सिग्निफिकेंस है कि क्या मतलब होता है इसका, वो हम समझने लगते हैं. उसके बाद पिक्चर समझने के बाद हम मंत्रा के बारे में समझते हैं. फिर हम उनका जो यंत्र है हर देवी का, जैसे माँ काली का अलग है, माँ तारा का अलग है. सो दीज आर द 10 महाविद्यास. माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता, त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला. These are the 10 forms. So we, first of all we decode the picture. What is the meaning of each picture? क्यों ये picture ऐसी है? Then her mantra, then her yantra. We also learn about the ritual, which is extremely powerful. Every Devi has a different kind of a ritual. And then when we want to do something, we combine all of these aspects together to get that power within us, to ignite that fire within us, and to manifest our desires. Whatever we want to attract, we start using that power. We do not waste that, and we spend that power. We utilize that power in attracting the things that we desire. So the most important thing in this is the initiation. Now there is an initiation always involved in it from a person who has been practicing it since some time. क्योंकि जिसने किया है उसके पास वो एनर्जी है, वो एनर्जी वो देने लायक है, उसके पास वो काबिलियत है कि वो एनर्जी वो
एक चैनल है, उसके द्वारा वो अट्यूनमेंट और इनिशिएशन आपके पास आता है. And then, a lot of progress speedens up in your life, because we cannot practice any mantra by picking it up from the internet. We all know that we should not handle the power and the potency of each mantra is different. And जब हम कोई भी मंत्रा प्रैक्टिस करते हैं तो उसका हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे एनर्जी बॉडी के अंदर हर मंत्र का एक अलग प्रभाव होता है. हर मंत्र एक चक्र के साथ जुड़ा हुआ होता है. जब हम 10 महाविद्या सीखते हैं तो उनका हर माता का, हर देवी का एक प्लैनेट के साथ कनेक्शन है. तो ऑब्वियसली जब आप पूरा 10 महाविद्या सीख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरी लाइफ में ये चीज ठीक नहीं है. तो यू कनेक्ट टू वन देवी इन इन अ प्रॉपर वे. ज्यादा आप उनसे कनेक्ट होते हो ताकि आपकी लाइफ की हीलिंग होने लग जाए. सो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर वे, a proper protocol, and then you see, via which we go, and then beautiful things start falling for you. And then आप ये 10 दिन आप हमको देते हो, 10 दिन आप ये सीखते हो मेरे साथ, and then your own journey starts after these powerful 10 days. So you will connect with all the energies, and maybe after some time you will connect to one particular Shakti. तो बेसिकली क्या होता है, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ एट दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ. आप जब इनके बारे में सीख लेते हो, उसके बाद जैसे गुरु आपको एक रास्ते से लेके जाता है, जिस रास्ते से वो खुद गुजरा है, आपको वो लेके जाता है गुरु, आपको हैंड होल्ड करके वो आगे लेके जाता है. फिर क्या होता है, गुरु आपको एक रास्ते पे ले जाके आपको छोड़ देता है कि नाउ यू हैव टू मेक योर ओन पाथ, यू हैव टू मेक योर ओन वे, एंड दैट इज द प्लेस where the 10 Mahavidyas, they come themselves in your life and they start leading it. They start guiding you. इसीलिए बोलते हैं कि इनका जो ज्ञान है बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर्स में बहुत ज्यादा नहीं है, इनका ज्यादा जो मेंशन है बहुत ज्यादा, because they have their own way of unleashing themselves in your life. Once you connect to them, तो ये खुद आपको, पहले आपको एक गुरु लेके जाता है, उसके बाद ये खुद आपको गाइडेंस देती है. Because the first 3 Mahavidyas जो है Kali, Tara, Shodashi, they are extremely powerful and they connect to you and they start guiding you. They work in your life. Every Mahavidya, every Devi is connected to a particular planet and a particular chakra. तो आपके जो चक्र हैं उनकी सफाई होने लग जाती है. आपके जो planets में कोई मैलेफिक प्लैनेट है जो आपको गलत रिजल्ट दे रहा है आपकी लाइफ में, वो सब खत्म होने लग जाता है और हीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है. तो आपके जितने भी चक्रास है, सी आई विल जस्ट शो यू अ पिक्चर एंड यू कैन जस्ट मेक आउट कि क्या हो रहा है यहाँ पे. जस्ट लुक एट द प्रेजेंटेशन दैट आई शो यू एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस. या, सो आई हैव शेयर्ड अ पिक्चर. नाउ यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर क्या है? ये हमारी पिक्चर है, 2 पिक्चर्स हैं इसमें. एक है जिसमें सारे चक्रास हमारे, वी ऑल नो दैट वी हैव 7 चक्रास, तो हमारे सारे चक्रास अलाइनमेंट में है राइट वाली पिक्चर में. और लेफ्ट वाली में कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसे है. तो ये सारे चक्रास हमारे जनरली क्या है, मिस अलाइंड होते हैं. एंड द मोमेंट दे एंटर आवर लाइफ, ये सारे चक्रास अलाइनमेंट में आने लग जाते हैं. बिकॉज आई टोल्ड यू ना दैट ईच चक्रा इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर देवी. तो जब हर देवी हर चक्रा से कनेक्टेड है और हम इनको अपने अपने चक्र में स्थापना देते हैं, एक एक चक्र में एक एक जगह हम इनको स्थापना देते हैं. ऑल दैट आई टीच इन द वर्कशॉप. आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट ओवर हियर. सो उसके बाद वो चक्र की सफाई शुरू हो जाती है. दैट चक्र स्टार्ट्स ऑपरेटिंग ऑन अ मच बेटर वे. उसके अंदर एक क्लीन प्राणा सर्कुलेट होने लग जाता है. एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग इन अलाइनमेंट एंड वंस वी एक्सेप्ट देम, वंस दे कम इन आवर लाइफ, मतलब हमको सिर्फ एक हाँ बोलने की देरी है. एंड द मोमेंट वी से हाँ, दैट इज ऑल्सो विद हर इच्छा, एंड देन दे एंटर आवर लाइफ. एंड स्मॉल स्मॉल हम डेली प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस आने लग जाते हैं. नाउ जैसे मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था यहाँ पे, साधना. नाउ व्हाट इज साधना? साधना क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि इस क्लास को करने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी साधना करनी चाहिए. व्हाट इज साधना? साधना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है. इट इज जस्ट अ स्मॉल पर्टिकुलर वे and a process of doing your spiritual practice daily to bring alignment with the universe. आप क्या हो रहे हो? आप रोज एक थोड़ा सा समय निकाल रहे हो अपने लिए. That is your me time, जिसमें आप यूनिवर्स से अलाइन होने की कोशिश कर रहे हो. जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद हम घर में, हम ऑफिस जाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगरबत्ती में पूजा करते हैं और हम निकल जाते हैं.
या हम जो भी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम निकल जाते हैं, कई लोग वो भी नहीं करते हैं। बट हर इंसान का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एक तरीका होता है, just to say gratitude to the universe, just to do some kind of spiritual practice in your home. So that is sadhana. इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर तरीका बता दिया जाता है कि इस तरह से आपको ऐसे करना है. So when you start following that, things start again changing in your life. So there is an initiation involved, I told you, and then progress comes to you in a very, very powerful way. So all this happens, and after this I will not talk much about it. Now I will just open my platform for questions. Like, if you just give me a second. You were such a good class. Nobody talked anything बीच में, किसी ने कोई mute unmute कुछ नहीं किया. Thank you so much.